Now we'll continue the complex branching. And जो क्वेश्चन अगर आता भी जनरली फुल फ्लेज क्वेश्चन डज नॉट कम ऑन द नोमेनक्लेचर, बट अगर आता है तो कॉम्प्लेक्स ब्रांचिंग पे ही क्वेश्चन आएगा. सो गिव द हेडिंग कॉम्प्लेक्स ब्रांचिंग. कॉम्प्लेक्स. और उसके पहले एक काम करते हैं, हम लोगों ने आइसो नियो सेक ये सब सीखा नहीं है ना पहले. आइसो नियो. तो फर्स्ट राइट देन ठीक है, तो लिख दो कॉम्प्लेक्स ब्रांचिंग. ओके. इसके अंदर फर्स्ट हम सीखते हैं आइसो, यूज ऑफ आइसो नियो सेक. यूज ऑफ आइसो नियो नॉर्मल. ऐसे लिखो. लेट मी यूज डिफरेंट कलर. यूज ऑफ नॉर्मल और आइसो और नियो. Okay. So when do we use these prefix? Actually, these prefix are preferred in complex branching. Complex branching क्या है? When there is a branch in branch. Already हम लोगों ने parent chain लिया, parent chain में branch है. But if there is a branch in branch, then that is called complex branching. Okay. So here, use of n is normal, iso, new. So first write what is n. When we use n, so this prefix is used. So this prefix is used when carbon chain is of straight. When carbon chain is of straight chain, no branching anywhere. This prefix is used when carbon chain is of straight chain, no branching anywhere. Okay, so no branching anywhere, then it is called normal. Like जैसे हम लोगों ने किया था, याद होगा सबको, इसका नाम लिखा था तो एन ब्यूटेन. देखो इसका नाम लिखा था एन ब्यूटेन. कहीं भी ब्रांच नहीं, इट्स अ ब्यूटेन बट देयर इज नो ब्रांच एनीवेयर. स्ट्रेट चेन, parent chain is your straight chain, no branching. It is called normal butane, N-butane. Okay. B, second iso. When we use prefix iso, so iso prefix is used. Iso prefix is used when second last carbon. Iso prefix is used when second last carbon has only one CH3, has only one CH3 group and no branch anywhere. Second last carbon has CH3 group and no branch anywhere. It is called iso. Meaning जैसे भी ये देखो, जैसे मैं इसको ऐसे लिखा मैंने, तो सेकेंड लास्ट कार्बन देखो यहाँ पे 1 2 3. So this is your second last carbon. The second last carbon has got CH3.
It is called iso. Second last carbon has CH3. It is called iso. Okay. So no branching anywhere. So it is called. देखो यहाँ पे कितने हो गए? 1, 2, 3, 4. So trivial name. It is a trivial name. It is called isobutane. This is its trivial name. What is its IUPAC name? So IUPAC name will be 1, 2, 3. So 2-methyl propane. देखो तो 2-methyl propane is the IUPAC name. Trivial name is isobutane. Okay. If I take this, let's say इसका नाम देखो. This is second last. Let's say यहाँ पे what second last means not according to numbering 1, 2, 3, 4. So it is your second last carbon from this side. ठीक है 1, 2, 3, 4 numbering के according नहीं. It is just second last. चाहे इधर हो चाहे इधर हो. Not according to numbering. According to numbering it is second carbon. So it is 1, 2, 3, 4, 5. So it is isopentane. Isopentane. IUPAC name क्या होगा? 1, 2, 3, 4. 2-methyl butane. IUPAC name will be 2-methyl butane. Okay. Clear everybody? C is neo. Neo prefix. This prefix is used when neo. This prefix is used when two CH3 group. This prefix is used when two CH3 group are present at second last carbon. No branching anywhere. No branching anywhere. Okay, like this. कैसे भी मान लो ये हो गया. जैसे अभी यहाँ पे देखो जैसे तुम्हारा क्या हो गया 1, 2, 3, 4, 5. It is a normal pentane. मैंने इस CH3 को उठा के सेकेंड कार्बन पे रख दिया मैंने. देखो ये इट इज कॉल्ड आइसोपेंटेन. इट इज ट्रिवियल नेम आइसोपेंटेन. फिर से मैंने इस CH3 को उठा के फिर से सेकेंड पे रख दिया मैंने. देखो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5. तो ऑन द सेकेंड कार्बन वी हैव टू CH3 ग्रुप. इट इज कॉल्ड नियोपेंटेन. Its IUPAC name will be 1, 2, 3. 2 dimethyl propane. That is the trivial name. This is neo, iso, this is normal. Priority order is normal priority order. Priority order is normal, then iso, then neo. It is the priority order. Okay, means जैसे normal, iso, neo means sorry priority order मतलब this इसका priority हमेशा secondary, tertiary से अधिक होगा. मीन्स प्रायोरिटी ऑर्डर में नॉर्मल आइसो नियो का प्रायोरिटी हमेशा सेकेंडरी, टर्शियरी, प्राइमरी
ठीक है, इन सबसे अधिक होगा। ठीक है, तो प्रायोरिटी ऑर्डर वाइज अगेन नॉर्मल आइसो नियो ये तो अकॉर्डिंग टू अल्फाबेट आएगा, बट इसका प्रायोरिटी सेकेंडरी टर्शियरी इससे अधिक हुआ। सेकेंडरी टर्शियरी क्या, उस पे हम लोग आते हैं। देखो ये सेकेंडरी सबको याद होगा, सेकेंडरी हम लोग किसको बोलते हैं, जब 2 डिग्री कार्बन से कुछ अटैच हो इट इज कॉल्ड सेकेंडरी। जब 3 डिग्री कार्बन से कुछ अटैच हो इट इज कॉल्ड टर्शियरी। आई होप सबको याद हो, हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में किया है ये प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी लाइक दिस। ओके, ठीक है जो, ठीक है, यहाँ तक तो ओके है। अभी कॉम्प्लेक्स ब्रांचिंग में जो कॉम्प्लेक्स ब्रांचिंग में हम लोग इसको भी यूज करते हैं, नॉर्मल आइसो नियो। ये भी नाम वी यूज दिस although it is a trivial name but this is also used. So now let's go to complex branching जो अपना एक्चुअल है, इसलिए हम लोगों ने ये पहले किया। जैसे भी मान लो पेरेंट चेन है और पेरेंट चेन के साथ ब्रांच है, मान लो कि ये पेरेंट चेन है। ठीक है, मैं जस्ट ऐसे ही लिख रहा हूँ पेरेंट चेन, एंड इसको लग के ये एक ब्रांच है, ये अपना पेरेंट चेन है, एंड इसको लग के ये ब्रांच है। तो इस ब्रांच का नाम क्या आएगा, तो आई थिंक सबको याद होगा लास्ट डे मैंने कहा था ब्रांच मतलब क्या होता है, ग्रुप। ग्रुप के नाम में हमेशा वाई आता है, वाई के लास्ट में। जैसे अभी हम लोगों ने किया था अभी कि जैसे अभी इसका नाम क्या था अभी, ये तुमको क्या है, इट इज प्रोपेन, इट इज योर प्रोपेन। वही अगर ये देखो यहाँ पे ये अगर इस पेरेंट चेन से कनेक्टेड है तो इसमें एक हाइड्रोजन कम होगा, तो ये 1 2 3, यहाँ भी ये है प्रोपेन। इसका नाम ये जो ब्रांच है ना, ब्रांच इज अ ग्रुप, ग्रुप में हमेशा एक हाइड्रोजन कम होगा। ग्रुप का नाम देखो लास्ट किया था हम लोगों ने, इट इज ऑलवेज YL। ओके, तो इसका नाम क्या आएगा, इट इज प्रोपाइल, प्रोपाइल। लेकिन ये स्ट्रेट चेन है तो N प्रोपाइल, इसका नाम आ जाएगा N प्रोपाइल। प्रोपेन में एक हाइड्रोजन कम होगा तो इट विल बिकम प्रोपाइल। When this is attached to the parent chain, when this propane is attached to parent chain, it becomes a group. Group always have one hydrogen less. So one hydrogen less, meaning it is going to have, name will be prop. Prop means it has got 3 carbon, 1 2 3, and YL means what? It has got one hydrogen less. Everybody, fine? ठीक है, अगर मान लो ये ऐसे भी अटैच हो सकता था, इसलिए इसको ऐसे लिखा, ये हो गया पेरेंट चेन, और ये इस तरह, इसको देखो, इसको हम लोग ऐसे भी, ये यही सेम इस तरह भी अटैच हो सकता है। ये पेरेंट चेन हो गया, पेरेंट चेन से अटैच, ये तुम्हारा ग्रुप हो गया। इसका नाम क्या आएगा, तो देखो दिस इज कॉल्ड, देखो इसीलिए यहाँ पे N लिखा हम लोगों ने, देखो यहाँ पे एक हाइड्रोजन कम है तो हमेशा YL आएगा, एंड इट इज कॉल्ड आइसो, it is called isopropyl. This is also used in IUPAC names, isopropyl. And if you want to use the trivial name, sorry, in IUPAC name for branching, that can be also done. IUPAC name for branching is also possible. तो यहाँ पे देखो it is isopropyl, ये लिखो, वाई क्यों है, बिकॉज दिस इज पैरेंट चेन, उससे अटैच ये ग्रुप है, so it is isopropyl, YL. आइसो मीन्स सेकेंड कार्बन से, ऑल्दो उसका जो
डेफिनेशन है वो CH3 है, लेकिन यहाँ पे हम लोग ये नहीं यूज कर रहे हैं, यहाँ पे हम दिस इज ऑल्सो कॉल्ड आइसोप्रोपाइल। देयर इज अ IUPAC रूल फॉर ब्रांचिंग इन ब्रांचिंग ऑल्सो। देखो ये अभी देखो ये तुम्हारा ये हो गया पेरेंट चेन, इससे ये ब्रांच हो गया। फिर देखो ब्रांच में भी ब्रांच है, जैसे यहाँ पे कोई ब्रांच नहीं है, ये स्ट्रेट चेन है। यहाँ पे देखो ब्रांच में भी ब्रांच है, तो इसका हम लोग IUPAC नेम भी लिखते हैं। हाउ डू वी राइट? तो जो कार्बन पेरेंट चेन से कनेक्टेड है इट इज गिवन 1 always. The carbon which is attached to parent chain it is always given 1. So 1 and this is 2. So it becomes, so just see first carbon pe hai branch, it is called 1 methyl, and there is 2 carbon in the longest chain of the branch. So longest chain में 2 है, so it will be eth. And since it is a branch, it is a group, so last में नाम क्या आएगा? YL. It will come YL. So its name will be 1-methyl ethyl. Just see. So isopropyl can be also written as 1-methyl ethyl. Okay. This rectangular bracket means it's a parent chain. Parent chain से attached group है. Everybody, follow yes and no. Yes and no. Thumbs up दो. Yes, sir. If you like my video, like and subscribe. सर वो रिपीट करो ना एक बार। If you like my video, like and subscribe. नहीं सर वो नहीं, वो मिठाई थैल वाला। देखो there is a IUPAC rule for complex branching also. एक तो ये तुम इसको तुम ये लिखो isopropyl, that is also correct. लेकिन there is rule for complex branching also. Naming of the complex branching. What is complex branching? There is branch in branch. तो देखो यहाँ पे it is a parent chain. जो इससे अटैच जो कार्बन है it is given 1, then go for longest chain. 1 2. तो पेरेंट चेन से जो अटैच कार्बन होगा दैट विल बी कॉल्ड 1. ठीक है, देन 2. तो जस्ट से, तो नाउ जस्ट से इट बिकम्स अ पेरेंट चेन ऑफ द ब्रांचिंग. तो फर्स्ट पे ये कौन सा ग्रुप है? इट इज अ मिथाइल ग्रुप, सो 1 मिथाइल मैंने लिखा. देन पेरेंट चेन में कितने कार्बन? 2, तो इथ. एंड ये होल क्या है? इट इज अ ब्रांच. तो ब्रांच के लिए हमेशा YL आता है लास्ट में, YL. So 1-methyl ethyl. So this will be the name of this branching. Complex branching. You can write 1-methyl ethyl or you can write isopropyl also. That is also correct. ठीक है. अभी same way try this. ये तुम्हारा parent chain हो गया, इससे अटैच ये, इसका लिखो नाम IUPAC name. Write the IUPAC name of this complex branching. It is parent chain. But the other name I will tell you. But first you write the IUPAC name. क्या आएगा? Yes, anybody? 1-methyl propyl. Yes. Right. So
तो कार्बन अटैच टू पैरेंट चेन इज ऑलवेज गिवन 1 1 2 3, तो 1 मिथाइल ये हो गया, इसका नाम हो गया। देन लॉन्गेस्ट चेन में, ब्रांच के लॉन्गेस्ट चेन में 3 है कार्बन, तो प्रो, एंड इट इज इटसेल्फ अ ब्रांच, तो ब्रांचिंग का नाम हमेशा YL ही रहेगा, तो 1 मिथाइल प्रोपाइल। देखो ये एवरीबॉडी क्लियर है? दिस इज ऑल्सो नेम्ड एज, इसका ट्रिवियल नाम भी हम लोग IUPAC नेम में यूज करते हैं। देखो दिस कार्बन, ये जो कार्बन है इट इज ब्यूटेन और ये इससे अटैच है, तो देखो दिस कार्बन इज 2 डिग्री कार्बन, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी एक कार्बन, तो 2 डिग्री इज कॉल्ड सेकेंडरी, सेकेंडरी कार्बन। ओके, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में सेक भी बोलते हैं, सेक। तो इसका नाम क्या है? देखो यहाँ पे सेक, ये तो हो गया IUPAC नेम ऑफ द ब्रांच, कॉम्प्लेक्स ब्रांचिंग। ट्रिवियल नेम इज सेक। देखो ये सेक हो गया सेकेंडरी, एंड इट इज 1 2 3 4, तो 4 कार्बन है, तो इट इज कॉल्ड सेक ब्यूट। 4 है तो ब्यूट हो गया, एंड ब्रांचिंग ऑलवेज हैज द सफिक्स YL, तो सेक ब्यूट YL। तो दिस कैन बी आल्सो written like this and hyphen in between, सेक ब्यूटाइल। तो इसका नाम ट्रिवियल नेम ये भी लिख सकते हैं हम लोग, सेक ब्यूटाइल। क्वेश्चन में ऑप्शन में हो सकता है, ठीक है एवरीबॉडी? ओके, सर हाँ सर वो जो सेकेंडरी कार्बन था वो टर्शियरी नहीं होगा क्योंकि 3 कार्बन से कनेक्टेड है ना? नहीं नहीं, इसको मत देखो, अभी जो पेरेंट चेन को काउंट करना नहीं है। ओके जो अपना जो ब्यूटेन है उसमें 1 और 2, अभी इसको हटा दो। अभी अभी ओके। ये कार्बन कौन सा हो गया? सेकेंडरी। हाँ सर। तो अभी ये अगर पेरेंट चेन से कनेक्टेड है तो इसको हम लोग, जो अगर इट्स अ ट्रिवियल नेम, ट्रिवियल नेम में कोई रूल फॉलो हम लोग करते नहीं है, ठीक है? ओके सर। हाँ, लेकिन ये भी यूज होता है, ये मैं बोल रहा हूँ, कॉम्प्लेक्स ब्रांचिंग में ये भी नाम यूज करते हैं हम लोग। ओके सर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इज पेरेंट चेन, ये हो गया। इसका नाम क्या आएगा? ये जो है ब्रांच, इसका नाम बताओ, पेरेंट चेन से कनेक्टेड ये। तो देखो कितने हैं कार्बन, ब्रांचिंग में कितने कार्बन है? 4। 4 मतलब क्या हो ब्यूटाइल गया? एन N ब्यूट, ओके करेक्ट, एंड इट इज अ ब्रांच, सो YL, इट इज N ब्यूटाइल। देखो ये यहाँ पे स्ट्रेट, इट इज N ब्यूटाइल, ठीक है? इसका नाम लिखो। क्वेश्चन इज, IUPAC नेम लिखो इसका, यू हैव टू राइट IUPAC नेम। टू मिथाइल प्रोपाइल। ओके, तो आई थिंक क्या हो जाएगा, 1 2 3। देखो
parent chain से attached carbon is always given 1, so 2 methyl propyl. I hope अभी क्लियर है सबको. मिथाइल ये हो गया, लॉन्गेस्ट चेन में 3 कार्बन तो प्रोप हो गया, एंड YL बिकॉज इट्स अ ग्रुप. इसको हम लोग देखो, ये अगेन सबको याद होगा, इसका नाम क्या था, ट्रिवियल नेम इसका, इसका ट्रिवियल नेम क्या था, आइसोब्यूटेन. आइसोब्यूटेन. तो देखो यहाँ पे इससे ये अटैच है, इट इज कॉल्ड आइसोब्यूटाइल also. So this can be also written as isobutyl. This can be also written as isobutyl. इसका नाम लिखो. तो यहीं तक हम लोग IUPAC नेम भी लिखते हैं ब्रांचिंग, और ट्रिवियल नेम भी होता है. जो आगे के क्वेश्चन है उसमें सिर्फ IUPAC नेम ही अपने को लिखना है. प्लीज एवरीबॉडी. तन्वी नहीं है, सिया गेटिंग. Yes, sir. ईशा. Yes, sir. यस. तो टेल मी ईशा, इसका नाम बताओ तो IUPAC नेम क्या आएगा. 2,2-dimethyl ethyl. 2,2. सॉरी, यहाँ पे 1 2 सर वन होगा. 1,1 आएगा. देखो ये फर्स्ट पे ही है ना, दोनों ब्रांचिंग फर्स्ट पे है, तो 1,1 डाई मिथाइल इथ, एंड इट्स अ ग्रुप, सो YL. तो 1,1 डाई इथाइल, डाई मिथाइल इथाइल. देखो तो कॉम्प्लेक्स ब्रांचिंग में क्या करना है, तो 1 is always given to the carbon which is directly attached to the main branch. ठीक है, which is directly attached to the main branch. तो ये हो गया अपना पेरेंट चेन उससे डायरेक्टली अटैच्ड. ये तो 1,1 डाई मिथाइल इथाइल. इसको हम लोग देखो, ये तुम्हारा ऐसा हो गया, इससे अटैच है ये. इट इज जस्ट इट इज योर 3 डिग्री कार्बन. 3 डिग्री इज ऑल्सो कॉल्ड टर्शियरी. So this is also called third butyl. It is also called third butyl. ठीक है एवरीबॉडी. तो यहां तक ट्रिवियल नेम याद रखना है. सेक, आइसो, टर्ट, ये यहाँ भी आइसो, आइसोप्रोपाइल, सेक ब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल एंड टर्ट ब्यूटाइल. उसके साथ साथ ये जो IUPAC नेम है ये भी याद रखना है. ठीक है, अभी मैं कुछ क्वेश्चंस में ले रहा हूँ. ठीक है, अभी उसको सॉल्व करो. दैट इज फॉर अ कॉम्प्लेक्स ब्रांचिंग इटसेल्फ. मान लो
Remaining bonds are with hydrogen. जो rectangular bracket है, that is a parent chain. सर इनमें सिर्फ IUPAC नेम लिखना है ना? हाँ, ट्रिवियल नेम जब तक तुम पढ़ोगे नहीं तब तक मालूम होगा नहीं, तो तुमको IUPAC नेम ही लिखना है. Remaining bonds are with hydrogen, हाँ everybody. मैंने हाइड्रोजन शो नहीं किया है. आई होप सबको पता है कि कार्बन नीड्स 4 बॉन्ड टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट. इसमें सिर्फ तुम फर्स्ट एंड सेकंड करो, बाकी के मैं बताता हूँ. फर्स्ट एंड सेकंड सिर्फ लिखो. सर हाँ सर वो जो लास्ट क्वेश्चन है ना, हाँ, उसमें पहले इसमें CH3 कैसे होगा? CH2 होगा. हाँ सर.
हो गया। हाँ तन्वी बताओ तो इसका नाम क्या आएगा फर्स्ट का? तन्वी फर्स्ट का नाम क्या आएगा? के दिव्यांशी फर्स्ट का तो ये पेरेंट चेन हो गया, ये तुम्हारा मेन फंक्शनल ग्रुप हो गया। फर्स्ट का नाम बताओ। दिव्यांशी आ रही है आवाज? आवाज नहीं आई। इंद्रानी बताओ। सर 1,2-डाइमिथाइल। वन किस? हाँ तो देखो यहाँ पे द कार्बन अटैच टू पेरेंट चेन दिस इज 1 2 3 करेक्ट। तो 1 पे ये ग्रुप और ये ब्रांच हो गए, तो 1,2 डाइमिथाइल and then longest chain of branching contains 3 carbon, so prop, and it's a branching, its name will end with YL. So 1,2-dimethyl propyl. Okay, वैष्णवी नेक्स्ट का बोलो। सर 1,1-डाइमिथाइल प्रोपाइल। 1 2 3 राइट। तो ये भी ब्रांच हो गया, ये भी, तो 1,1 डाइमिथाइल प्रोपाइल करेक्ट। अभी देखो जो उसके बाद के नाम वो तुमको मालूम नहीं है, तो वो मुझे ही बताना होगा, ठीक है ना। तो दिस इज कॉल्ड, देखो ये, इसको तुम अगर बेसिक करो तो उससे भी आ सकता है। ये क्या होता है तुम्हारा CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसका नाम क्या होता है? इसका नाम क्या होता है? CH2 डबल बॉन्ड CH2 इथीन। इथिन। इथीन। अभी देखो यही है ना, उसमें से एक H कम हो गया है, दिख रहा है ये, तो इथ तो तुमने लिख दिया इथ इन, लास्ट का ई हटा के सिंस इट्स अ ग्रुप तो क्या हो जाएगा YL, इथिनाइल। गेटिंग दिस? देखो तो इथीन लास्ट का, इसका नाम तुम्हारा इथीन है, तो लास्ट का ई हटा के YL, तो इथिनाइल। ओके, यस सर। इसका ट्रिवियल नेम भी है, दैट इज कॉल्ड विनाइल। विनाइल भी बोलते हैं इसको, ट्रिवियल नेम। ये भी क्वेश्चन में होता है। इसका फिर बताओ उसी तरह, गो अहेड नाउ टेल मी इट्स नेम। थोड़ा सा रूल तो तुम्हारे सामने है, सारे रूल अभी सोचो एंड बताओ तो फिर क्या होगा। सर प्रोपिनाइल। देखो प्रोपिनाइल हुआ तो डबल बॉन्ड यहाँ पे है, ये यहाँ भी हो सकता था, लेकिन डबल बॉन्ड यहाँ पे है, तो तुमको डबल बॉन्ड का पोजीशन भी यहाँ पे बताना होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 2 3, तो देखो सेकेंड कार्बन पे है डबल बॉन्ड, तो प्रोप लॉन्गेस्ट कार्बन कंटेन्स 3, तो प्रोप, और देखो सेकेंड कार्बन पे डबल बॉन्ड है, तो 2 ENE, EN इज फॉर डबल बॉन्ड, और 2 मीन्स ऑन द सेकेंड कार्बन, सेकेंड और थर्ड के बीच में डबल बॉन्ड, इसका मतलब यही होता है।
कि सेकेंड और थर्ड के बीच में डबल बॉन्ड है, तो 2 प्रोप इन और इट्स अ ब्रांच, तो लास्ट में क्या आ जाएगा YL। प्रोपेन टू इनाइल, या फिर हम लोग 2 को आगे भी लेके आ सकते हैं, 2 प्रोप इन और लास्ट का ई हटा दिया वहां YL, तो 2 प्रोपीनाइल। देखो ये भी लिख सकते Yes, हैं, sir. बिकॉज डबल बॉन्ड का पोजीशन भी इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन में डबल बॉन्ड यहाँ पे, किसी में डबल बॉन्ड यहाँ पे हो सकता है। ओके एवरीबॉडी, Yes, sir. इसका बताओ फिर वैसे ही। डबल के लिए इन, ट्रिपल के लिए वाइन। prop 2 vinyl, क्या 2 propionyl, 2, तो देखो प्रोप हो गया, 3 है कार्बन, ऑन सेकेंड कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड है, तो प्रोप 2 वाइन, लास्ट का ई मैंने हटा दिया, इट्स अ ब्रांच, तो YL। तो प्रोप 2 वाइनाइल, या फिर 2 को आगे लेके आ जाओ, तो 2 प्रोप वाइनाइल। देखो ये ओके। मेथड देखो, मेथड एवरीबॉडी, मेथड इज इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन किसी भी टाइप का आ सकता है, मेथड इज इंपॉर्टेंट। ओके एवरीबॉडी, क्लियर है? कोई डाउट है किसी को? नहीं सर। जाओ इसमें फिर ये दोनों करो सॉल्व। सर और 2 ब्यूटेनाइल और 2 क्लोरोप्रोपाइल आएगा। इसका 1 2 3 4, तो ब्यूट 2 2 इनाइल। इन YL, या 2 को पहले लेके आओ, 2 ब्यूटीनाइल। देखो ये ओके, और इसका 1 2 3, तो 2 क्लोरो, इसका नाम क्लोरो, देखो लास्ट में मैंने लिख के दिया है, 2 क्लोरो प्रो प्रो प्रोपाइल, 2 क्लोरो प्रोपाइल। ओके एवरीबॉडी, so I have covered almost all types of complex branching. Clear? अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे OH इज अ फंक्शनल ग्रुप, लेकिन यहाँ पे ब्रांच में आ रहा है, मतलब इस वाले पेरेंट चेन में कोई लार्जर हायर प्रायोरिटी का कोई फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे होगा, इसलिए OH यहाँ पे एज अ ब्रांच आ रहा है। तो whenever OH comes as a branch, its name is hydroxy. When OH comes as a branch, its name is hydroxy. ओके, तो यहाँ पे रूल वही रहेगा, पेरेंट चेन से अटैच कार्बन 1 2 3,
तो इट बिकम्स 3 हाइड्रोक्सी, इसको लिखोगे 3 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल 2 मिथाइल, और ये लॉन्गेस्ट चेन कंटेन्स 3 कार्बन, तो प्रोप वाई, देखो ये प्रोपाइल 3 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल प्रोपाइल। Okay, everybody. Yes. When this comes as a branch, this is CN. तो ये नाम सब ध्यान में रखना है, ये जैसे प्रैक्टिस करेंगे वो अपने आप ध्यान में आएगा। It is called cyno. When CN comes as a branch, it is called cyno. तो क्या आ जाएगा 1 2, तो 2 साइनो इथाइल 2 साइनो इथाइल। When this comes as a branch, it is called carboxy 1 2 3। तो इसका लिखो 2 carboxypropyl। राइट, तो 2 कार्बोक्सी प्रोपाइल। सर हम इसमें COOH को प्रेफरेंस देंगे ना, मतलब CC और COOH, ऐसा ये चेन बनेगी ना? नहीं, अपना कोई तो यहाँ पे हायर प्रायोरिटी, जैसे सल्फोनिक का भी हायर प्रायोरिटी होता है, सल्फोनिक का, तो वो मान लो इस पैरेंट चेन में होगा, तो दिस कैन बी टेकन एज अ ब्रांच। सर पर ब्रांच में तो वो पहले है ना, ये ब्रांच में CH3 से ये ज्यादा ये। COH से जो हायर प्रायोरिटी का होगा उसका मैं बोल रहा हूँ। सल्फोनिक एसिड हैज गॉट हायर प्रायोरिटी देन COH, अगर वो आता है तो ये तुम्हारा पैरेंट चेन हो जाएगा। यस सर। So that depends on the branching, okay? On the higher priority group, कि यहाँ पे कौन सा ग्रुप है, अगर जो पेरेंट चेन में कोई ऐसा ग्रुप है जिसका प्रायोरिटी COH से अधिक है, तो नाउ दिस विल बी योर ब्रांच। तो मैंने ऑल टाइप्स ऑफ पॉसिबल केसेस मैंने ले लिए कि कॉम्प्लेक्स ब्रांचिंग में नाम कैसे लिखेंगे। सर हाँ, सर ब्रांच की जो चेन होती है उसमें हमेशा अल्किल को ही प्रायोरिटी दी जाती है। the longest, हाँ, the first carbon and then you should go for the longest chain. तो फिर जैसे इसमें था तो फिर COH का कार्बन नहीं कंसिडर कर सकते? नहीं, तुमको अल्केन ही तुमको लेना है, लॉन्गेस्ट चेन चेन तो नहीं। हाँ, इसको क्योंकि इसका नाम है कार्बोक्सी, जब इसको हम लोग लिखते हैं तो वी राइट दिस एज अ कार्बोक्सी व्हेन इट इज अ ब्रांच, और वही जब ये पेरेंट चेन में आएगा तो दिस विल बी टेकन एज कार्बन नंबर 1। ओके सर। यस जय, तुम कुछ पूछ रहे थे? नहीं है जय? नहीं सर, मैं पूछ रहा था, सेम डाउट था। ओके, ठीक है। तो देखो ये तुम्हारा मैंने ऑलमोस्ट सारे पॉसिबल टाइप्स ऑफ ब्रांचिंग ले लिए, ठीक है। नाउ आई वांट टू डू मैंने हम लोगों ने अल्केन किया, देखो अल्केन के बाद हम लोगों ने ये सारे रूल्स किए थे शुरू, ठीक है। अभी हम लोग अल्कीन एंड अल्काइन करेंगे तो, एंड उसके ऑन बेसिस ऑफ दैट विल हैव अ क्वेश्चंस एंड शीट्स। ओके, सो गिव द नेक्स्ट अल्कीन।
अल्कीन का नाम नेम कैसे लिखेंगे, तो ऑलरेडी हम लोगों ने किया हुआ है, तो क्विकली विल डू इट, वन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दैट। देखो अल्कीन में अल्क and ene CnH2n, it is a general formula। अल्कीन तुम्हारा क्या हो गया, मल्टीपल बॉन्ड हो गया, मल्टीपल बॉन्ड while counting, while choosing, when we go for parent chain, we choose the parent chain which contains functional group, multiple bond, and then substituent. So and multiple bond is always given two consecutive numbers, 2 3 3 4 4 5 like this, okay। So here जैसे अभी, और we give the number of the we give the number from where the double bond starts। जैसे अभी मान लो ये हो गया, this one, write its name, please write its name, all of you। Remaining bonds are hydrogen। Quickly write it। तो नंबरिंग हम लोग किस तरह करेंगे कि डबल, तो इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, सिर्फ डबल मल्टीपल बॉन्ड है, तो मल्टीपल बॉन्ड को हाईएस्ट प्रायोरिटी, तो उसको लोएस्ट नंबरिंग 1 2 3 4। तो क्या हो जाएगा, ब्यूट longest chain contains 4 carbon, so what root is but? First letter is always capital, so but on there is a double bond first carbon, so 1 en e, देखो ये, या फिर तुम इसको 1 को लेके आ जाओ इधर, तो 1 ब्यूटीन, देखो ये ऐसा होगा। Okay, so please write same way, complete this। यस, इसका नाम क्या आएगा, क्विकली एनीबॉडी? 2 pentane। तो 1 2
3 4 5, तो 2 पेंटेन। इसका तन्वी उसका माइक नहीं काम कर रहा। सिया, इसका नाम बताओ। नंबरिंग कहाँ से शुरू करेंगे सिया? सिया, आ रही आवाज? फ्रॉम राइट। देखो राइट से नंबरिंग करेंगे, मान लो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे। लेकिन मल्टीपल बॉन्ड लॉन्गेस्ट चेन में फिर आया ही नहीं, तो ये नंबरिंग रॉन्ग है। हाँ, ये नंबरिंग रॉन्ग है। कहां से होगा? तो 1 2, देखो ये डबल बॉन्ड लॉन्गेस्ट चेन में आना चाहिए, हम उसको लोएस्ट नंबरिंग। तो 1 2 3 4 5 6, ये तुमको ब्रांच हो गया। तो 2n प्रोपाइल, 2n प्रोपाइल हेक्स 1 इन, हेक्स 1 इन। देखो तो ओके एवरीबॉडी। तो इसका नाम 2n प्रोपाइल हेक्स 1 इन, या फिर कुछ तो ऐसे भी लिखेंगे 2n प्रोपाइल 1 हेक्सीन। यहाँ पे नंबरिंग इसमें बताओ, नंबरिंग कहाँ से होगा? इसमें ये तो आसान है, राइट टू लेफ्ट। राइट टू लेफ्ट। 1 5 2 methyl 2 hexene 4 5 6, यस 5 मिथाइल X2N। यहाँ पे नीचे से वो तो ऐसा 1 हाँ 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7। देखो तो 3 methyl 3 heptene। सेम इन सब का नाम, ये क्लोरो, ये ब्रोमो। इसमें जो एक इम्पोर्टेंट है, अगर मान लो कि लिख लो सबका जल्दी क्विकली। प्लीज हम लोग धीरे धीरे फिर वीडियो सबको ऑन करने को कहेंगे। हाँ, ये ध्यान में रखो, वीडियो ऑन रखना होगा। अभी तक मैंने उस पे ये नहीं किया, लेकिन अभी क्योंकि मुझे पता ही नहीं चल रहा कौन क्या कर रहा है भी या सर नहीं हो कोई। गया। ठीक है, ओके। तो क्या होगा बताओ जो है? नहीं, तन्मय बताओ। सर 3,6 मिथाइल ऑक्ट 3 ENE। तो नंबरिंग यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट। तो आई होप आ गया सबको। ठीक है, और डाई मिथाइल आएगा।
हाँ डाइमिथाइल 3,6 डाई में, अच्छा उसने डाई नहीं कहा क्या, डाई मिथाइल, 2 बार है ना मिथाइल, तो डाई मिथाइल। ओके, यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6 7। तो नेमिंग करते वक्त अल्फाबेटिक ऑर्डर फॉलो करेंगे। जैसे ब्रोमो का बी पहले आएगा, क्लोरो का सी बाद में आएगा। ओके एवरीबॉडी। Bromo 2 chloro 4 chloro 2 heptene. 6 ब्रोमो 4 क्लोरो 2 हेप्टीन, राइट। ओके एवरीबॉडी, डन। यस सर। अगर मल्टीपल बॉन्ड 2 या मोर देन 2 टाइम्स आता है, जैसे मान लो ये हो गया ऐसा, तो इनका नाम थोड़ा सा अलग लिखते हैं हम लोग। इसको हम लोग लिखते हैं अल्का डाइईन। मतलब यहाँ तो फिर अपना नंबरिंग वही करना है कि द डबल बॉन्ड शुड गेट लोएस्ट नंबर। तो 1 2 3 4 5, तो 1 और थर्ड पे डबल बॉन्ड है, तो क्या 5 है, मतलब क्या हो गया, पेंट। और देखो ये ए आता है अल्का, तो यहाँ पे पेन पेंटा, पेंटा आ जाएगा, ठीक है। और 1,3 डाई इन, 2 है तो 1,3 डाई इन, ठीक है। तो पेंटा 1,3 डाई इन, या 1,3 को इस साइड लेके आ जाए तो 1,3 पेंटा डाई इन। देखो ये तो 2 या मोर देन 2 डबल बॉन्ड्स होंगे तब, ठीक है। तो अल्का ए आता है, अल्का डाइन, अल्का ट्राइन, अल्का। और किस किस पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, वो भी हम लोग लिखते हैं। ओके एवरीबॉडी। यस सर। देखो यही मुझे मेन बताना था अभी। आ, मैं शीट्स में इस पे शेयर में करूंगा फॉर योर राइटिंग द नेम्स ग्रुप में, ठीक है। तो एंड सेम फॉर ट्रिपल बॉन्ड ऑल्सो, जस्ट एक एक रह गया ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड के लिए भी सेम चीज, ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या आ जाएगा, ऐसे ही ब्यूट 1 वाइन और 1 ब्यूटाइन। मान लो ये ऐसा है, इसका नाम लिखो, लिखो तो इसका नाम। दोनों का नाम लिखो। सर हम्म 2 bromo 8 phenyl of 3 ENE. just
देखो तो नंबरिंग कहाँ से होगा, यू हैव टू सी द, इसमें मल्टीपल बॉन्ड को हाइस्ट पे कोई यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7, तो लोएस्ट समेशन रूल, तो देखो यहाँ पे सेकेंड कार्बन पे +4 पे दैट इज 6, और यहाँ से कहते 1 2 3, तो देखो नंबरिंग इस साइड से होगा, राइट टू लेफ्ट। लोएस्ट समय, पहले हम लोग हमेशा लोएस्ट समेशन रूल थे, अगर 2 या 2 से अधिक है मल्टीपल बॉन्ड्स, तो विल सी द लोएस्ट समेशन रूल। ओके, तो नंबरिंग सही है ये इनका। देखो सही है नंबरिंग एवरीबॉडी। हाँ सर। तो आई थिंक नंबरिंग सही है, तो अभी लिखते आ जाएगा 6 ब्रोमो 1 फेनाइल हेप्टा 2 4 डाई वाइन। 2 को तुम अंदर लिखो या बाहर लिखो, दोनों चलेगा। Everybody. Clear है all of you? Done? यस सर। बोलो। यस सर। ठीक है, तो अभी हम लोग देखो मैंने शीट ग्रुप में शेयर किया है अभी, ठीक है। उसमें देखो डीपीपी करके नाम है, डीपीपी 1 डीपीपी 3 है, देन 4 है, 5 है, ऐसे मैंने शेयर किया है। टू आई थिंक गायब हो गया सर। और वहां पे आंसर भी मैंने दिया हुआ है, तो पहले तुमको खुद से ट्राई करना है। ठीक है एवरीबॉडी, देखो तो व्हाट विल डू, first we'll go for the doubts of mole concept, then we'll come to this again. Okay everybody, तब तक तुम शीट देख लो, अरेंज कर लो। क्लियर ऑल ऑफ यू? सर फर्स्ट वाली करनी है ना? हाँ फर्स्ट वाली करनी है ना, DPP 1?
नहीं DPP 1 करना है, 3 करना है। 3 में जो साइक्लिक पार्ट है ना, अच्छा ठीक है, साइक्लिक पार्ट थर्ड में साइक्लिक भी है, देन ओके एक काम करता हूँ, मैं साइक्लिक भी बता ही देता हूँ। तो यहाँ पे देखो DPP 1, उसके बाद 4 करना है। देखो वहां पे DPP 1 करना है, उसके बाद फोर्थ पे आ जाओ, ठीक है, फोर्थ को करना है, उसके बाद फोर्थ में भी साइक्लिक है। एनीवे तो व्हाट विल डू, साइक्लिक हम लोग कर लेते हैं, साइक्लिक तुरंत हो जाएगा। तो प्लीज नाउ आफ्टर दिस लेट्स गो फॉर, तो ये डबल ट्रिपल बॉन्ड हो गया। नाउ नेमिंग ऑफ द साइक्लिक कंपाउंड, साइक्लिक कंपाउंड का नाम कैसे लिखेंगे? तो जैसे हम लोगों ने देखो लिखा था, जब स्ट्रक्चर क्या था अपना कि 2 डिग्री प्रीफिक्स देन 1 डिग्री प्रीफिक्स, 1 डिग्री प्रीफिक्स इज साइक्लो, याद है? देन वर्ड रूट, देन 1 डिग्री सफिक्स, देन 2 डिग्री सफिक्स। देखो ये था वर्ड रूट एवरीबॉडी। तो साइक्लिक में हम लोग कैसे करते हैं, जैसे भी देखो, तो लिखो यहाँ पे गिव द हेडिंग नेमिंग ऑफ साइक्लिक कंपाउंड, नेमिंग ऑफ साइक्लिक कंपाउंड। जैसे अब इसमें पहला तुम्हारा ये हो गया, तो देखो इसमें साइक्लिक मतलब तुमने यहां से शुरू किया, वापस तुम आ गए यहीं पे, दैट इज साइक्लिक। इसमें कितने कार्बन, 1 2 3, तो हम लोग इसको पहले देते हैं 1 डिग्री प्रीफिक्स, दैट इज साइक्लो। हम लोग लिखेंगे साइक्लो। 3 है कार्बन, तो प्रोप, प्रोप, ठीक है। और बिटवीन कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, तो क्या आ जाएगा? एनी, तो इसका नाम आ जाएगा साइक्लोप्रोपेन। साइक्लोप्रोपेन। वैसे ही तुमने ये ले लिया, तो इसका नाम क्या आ जाएगा? साइक्लोब्यूटेन। देखो तो वैसे ये बाद में हम लोग का आएगा, लेकिन जस्ट थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं। साइक्लोप्रोपेन, इसका क्या हो जाएगा? साइक्लोब्यूटेन। ठीक है, ऐसे ही तुम्हारा आ जाएगा ये साइक्लोपेंटेन। तो एक काम मैं क्या करता हूँ कि साइक्लो के जो भी है ना वो छोड़ देना, ठीक है, क्योंकि वो अलग से मैं सिखाऊंगा, अभी वो कंप्लीट हो नहीं पाएगा, ठीक है। तो जो देखो, जो उसमें साइक्लिक जो ऐसे स्ट्रक्चर वाले होंगे ना, वो क्वेश्चन छोड़ देना, बाकी क्वेश्चन तुम ट्राई कर सकते हो। ओके ऑल ऑफ यू, क्लियर है? यस सर। Yes, sir. क्योंकि वो Yes, sir. होमवर्क भी रह जाएगा। तो उसमें देखो जो साइक्लिक नहीं है, तो सारे शीट में तुम देख लेना, जो जो साइक्लिक नहीं है वो सारे करने हैं। DPP 2 भेजता हूं मैं, उसमें भी कुछ होंगे क्वेश्चन, तो वो करना है। क्लियर है? तो DPP 1 2 3 4 5, उसमें जो भी साइक्लिक है उसको छोड़ दो, बाकी क्वेश्चन ट्राई करना है।
Okay, everybody. Now let's go for the doubts of mole concept. I hope सबने solve किया होगा. So let's go for it. तो doubts में तो वो ओपन करो सब शीट डाउट्स के लिए. Okay. तो मैं डाउट्स इस पे ले रहा हूँ पेन पेपर पे because that is easy to write. Okay. देखो तो हम लोग का अनसॉल्व हो गया था है ना. एक्सरसाइज अपना हो गया था एवरीबॉडी. अभी नेक्स्ट डे से सबको वीडियो ऑन करना है, ठीक है. ये ध्यान में रखो नेक्स्ट डे से. यस बताओ तो फिर सॉल्व एग्जांपल में 1 2 1 2 6. देखो मैंने पेज पीडीएफ भी शेयर किया था जिनके पास बुक नहीं है उनके लिए. वन टू सिक्स कोई डाउट है? यस सम्यक, वैष्णवी, ईशा. नो मोल कॉन्सेप्ट. नो सर. Sir. बताओ. नहीं है. ओके. 10 तक 1 to 10. नहीं सर. Sir, 7. 7th. देखो 7th क्लास में भी मैंने किया था. देखो यहाँ पे क्या करना है. 7th from 200 milligram of CO2 10⁻21 molecules are removed. Okay. तो CO2 का कितना होगा. इसका वेट दिया हुआ है 200 मिलीग्राम. और इसमें से हम लोगों ने कितना हटा दिया. 10⁻21 मॉलिक्यूल्स हम लोगों ने हटा दिए. तो हाउ मेनी मोल्स ऑफ CO2 आर लेफ्ट. तो पहले हम लोग फाइंड करते हैं कि इसका कितना मोल लिया था. मोल्स ऑफ CO2, इनिशियल मोल्स ऑफ CO2 सिया 200 मिलीग्राम. इसको ग्राम में कन्वर्ट करो. दिस बाय मॉलिक्यूलर वेट दैट इज 44. सिया होगा. Yes, sir. हाउ मेनी मोल्स आर रिमूव्ड. तो देखो 10⁻20 मॉलिक्यूल्स बाय Na. इतने मोल्स हट जाएंगे. Yes, sir.
तो 10^21 by 6.023 10^23 so we get 10^-3 -2 ये आ जाएगा तुमको 1.66 into 10^-3 कितने मोल्स हट गए, कितना हम लोगों ने लिया है वो देख लो. ऑलमोस्ट टेक दिस एज अ 45 तो 4 5 तो ऑलमोस्ट ये 5 टाइम्स के आसपास आ जाएगा. 5 ऑलमोस्ट मैं बोल रहा हूँ. तो देखो इतना मोल लिया था इतना निकल गया तो कितना बचा, हाउ मच लेफ्ट, नंबर ऑफ मोल लेफ्ट इज 10^-3 minus 1.66 into 10^-3 ऑलमोस्ट कितना आ जाएगा 3 देख लो 3 होता तो 3 पॉइंट समथिंग, मतलब अप्रॉक्स में बोल रहा हूँ अप्रॉक्स. ये वैसे ये 4 पॉइंट समथिंग आएगा, ये मैंने लिया है 5 वैसे. ओके हाँ सर. ओके 10 तक. वन to 10 नो सर. 15 सर 12. नहीं वो अभी करना नहीं है, मोलारिटी मैंने भी सिखाया नहीं है, वो करना नहीं है अभी. ओके सर. आई थिंक मैंने क्वेश्चंस का नंबर लिख के दिया था शायद, है ना, कौन कौन से करने हैं. हाँ सर. तो देखो उसमें 12 शायद होगा नहीं. 15 सर. ईशा, दिव्यांशी, इंद्रानी 15 तक. No, sir. ओके ईशा, नो सर. दिव्यांशी नो. ओके ठीक है. 20 20 नहीं सर. 17th. A metal, देखो क्वेश्चन नंबर 17. A metal M of atomic weight 59.54.94 has a density this. Calculate the apparent volume occupied by one atom of the metal. तो यहाँ देखो एटॉमिक वेट दिया है, डेंसिटी मतलब क्या होता है, रो मतलब होता है मास बाय वॉल्यूम, तो इसलिए वो दिया कितना 7.42 ग्राम पर सीसी. अभी तुमको फाइंड क्या करना है, द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय वन एटम. तो हम लोग फाइंड करते हैं कि 7.42 ग्राम ऑफ मेटल में तो मतलब कितने एटम्स है. तन्वी देखो रो दिया है दीज मेनी ग्राम्स पर 1 ml, सीसी में 1 ml. तो इन दीज मेनी ग्राम्स ऑफ मेटल हाउ मेनी एटम्स आर देयर. तो पहले मैंने इसका मॉलिक्यूलर वेट नंबर ऑफ मोल्स किया फाइंड. सो 7.42 डिवाइडेड बाय 54.94 कितने हो गए मोल्स. अप्रॉक्स तुम देखो 7 ऑलमोस्ट तुम्हारा ये 7.3 के आसपास आ जाएगा. तो 1.73 कितने मोल्स हो गए. तन्वी देखो ये हो गए. तो फिर ये क्या हो गया, मींस नंबर ऑफ एटम्स कितने हो गए. तो n into Na, it is only 1.7.3 into Na. देखो इतने एटम्स कितने वॉल्यूम में 1 सीसी में, बिकॉज ये जो मोल किया है फाइंड वो 7.42 ग्राम उसके लिए किया है फाइंड.
ओके तो जस्ट देखो कि these many atoms means Na by 7.3 atoms are in 1 ml of volume. तो 1 वॉल्यूम क्या होगा 1 ml Na into 7.3 कितना हो जाएगा 7.3 by Na हो गया 6.023 into 10⁻23 तन्वी देखो तो ठीक है ये तो कितना आ जाएगा ये 1 point something into 10⁻⁻23 देखो तो तन्वी ओके 20 तक और कोई डाउट किसी को 20 ओके 25 Sir, 22. 22 find the charge of 1 gram ion of this देखो ये जैसे हम लोग मैंने पहले कहा था कि 1 ग्राम एटम मतलब हो गया 1 मोल ऑफ एटम ठीक है सिया 1 ग्राम मॉलिक्यूल मतलब 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल वैसे यहाँ क्या हो गया 1 ग्राम आयन मतलब क्या हो जाएगा 1 मोल ऑफ आयंस ठीक है हाँ sir. ये ओके ये नोमेनक्लेचर ये नेमिंग हाँ sir. ओके तो ठीक है 1 ग्राम आयन मीन्स 1 तो यहाँ पे देखो तुमको क्या बताना है कि 1 मोल ऑफ N3 माइनस में कितना चार्ज है हाउ मच चार्ज चार्ज इन कूलम चार्ज का यूनिट कूलम होता है तो तुमको बताना है 1 मोल ऑफ N3 माइनस में कितना चार्ज है तो यहाँ पे जस्ट तुम देखो कि 1 N3 माइनस पे चार्ज कितना है तो 3 नेगेटिव चार्ज है मतलब 3 इंटू 1. देखो इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम ऐसे 3 है तो इतना चार्ज हो गया 1 N3 माइनस आयन पे हाँ ओके sir. हाँ. 1 मोल पे क्या हो जाएगा 1 मोल मीन्स Na इसको तुम Na से कर दो मल्टीप्लाई तो हो गया 1 मोल तो दिस इंटू Na तो 3 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू Na हो गया 6.023 इंटू 10⁻23 तो कितना हो गया ये हो गया 4 ये 696 ये 100 के आसपास आ जाएगा अप्रोक्स में कर रहा हूँ तो 100 इंटू 3 इंटू 10⁻⁴ नहीं 100 नहीं ये 10 आ जाएगा 1.6 इंटू 6 10 के आसपास तो 3 इंटू 10⁻⁵ कूलम देखो तो हाँ sir. ट्वेंटी सर 25th. हाँ देखो 25th आई वांट टू डिस्कस आल्सो दैट क्वेश्चन देखो उसके पहले मैं तुमसे पूछता हूँ कि मान लो CO2 का मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा वैष्णवी 44. 44 करेक्ट O2 का मॉलिक्यूलर वेट 32. 42 ये कब है जब ये 1 मोल है ये 1 मोल अलग अलग है हाँ? हाँ सर.
अभी मान लो मैंने क्या किया एवरीबॉडी, मैंने एक कंटेनर लिया, उसमें 1 मोल ऑफ CO2 एंड 1 मोल ऑफ O2, दोनों को एक साथ मैंने लिया, और मुझे इस मिक्सचर का मुझे मॉलिक्यूलर वेट निकालना है। इस मिक्सचर का मॉलिक्यूलर वेट निकालना है। तो व्हाट वी डू, तो यहाँ पे देखो जब हम लोग करते हैं, इसका मान लो नंबर ऑफ Na है, Nb है, ठीक है, Na for CO2, Nb for, तो what we do, just look at the Na by Na plus Nb into molecular weight of CO2, that is 44, plus Nb by Na plus Nb into molecular weight of O2, that is 32. So that becomes molecular weight of mixture. Na कितना है, 1 मोल, 1 by 1, ये हो गया half into 44 plus half into 44, sorry, half into 32, तो ये कितना हो गया, 22 plus 16, तो it becomes 38 ग्राम। देखो ये तो मिक्सचर का हमेशा मॉलिक्यूलर वेट ऐसे ही निकालते हैं कि इंडिविजुअल कंपोनेंट का मोल बाय टोटल मोल, सेकेंड का मोल बाय टोटल मोल। वैष्णवी, यस सर। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं, देखो ये Na by Na plus Nb को हम लोग बोलते हैं मोल फ्रैक्शन, एक वर्ड यूज करते हैं मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन ऑफ A, इसको हम लोग XA से करते हैं रिप्रेजेंट। सब इसको सब लिखना, इट इज अ पार्ट ऑफ थियरी ओनली, तो प्लीज राइट एवरीबॉडी, इसको लिखो यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ये लिख लिया एवरीबॉडी, डन। डन सर। वैसे ही तुम्हारा Nb by Na plus Nb is called mole fraction of B, means mole of a given component by total mole is called mole fraction of that component, ठीक है। यस। अभी मान लो जस्ट कि अभी मान लो कि तुम्हारे पास कंटेनर उसमें 3 है, इसका A B plus C, 3 मॉलिक्यूल्स है, इसका मोल है मान लो Na, इसका है Nb, इसका है Nc, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ A क्या होगा यहाँ पे, एक कंटेनर उसमें 3 मॉलिक्यूल्स है, A का Na मोल्स है, B का Nb, C का Nc, मोल फ्रैक्शन ऑफ A क्या होगा, Na upon Na plus Nb plus राइट, Na अपॉन Nb प्लस Nc। उसी तरह XB हो जाएगा Nb अपॉन Na plus Nb plus Nc। Similarly, Xc will be Nc by Na plus Nb plus Nc। तो
तो XA प्लस XB प्लस XC क्या आएगा? देखो तो 1 है। 1 आएगा, करेक्ट आना भी चाहिए। यहाँ पे 3 था इसलिए, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? XA प्लस XB, यहाँ पे XA प्लस XB 1 ही है। 1 ही आएगा। तो टोटल मोल फ्रैक्शन समेशन ऑफ, और टोटल मोल फ्रैक्शन का समेशन इज ऑलवेज 1। ओके एवरीबॉडी। यस तो अभी फाइनली मैं फिर से वापस आता हूं कि अगर मिक्सचर का मुझे मॉलिक्यूलर वेट निकालना हो, ठीक है, एक मिक्सचर है जिसमें A भी है, B भी है, C भी है, तो मिक्सचर का मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मिक्सचर विल बी मोल फ्रैक्शन ऑफ A into molecular weight of A plus mole fraction of B into molecular weight of B plus mole fraction of C into molecular weight of C. So this is the formula for finding the mole fraction, molecular weight of mixture. सर। ओके सर। सबको ये लिखना है, ये बार बार आएगा। तो इस क्वेश्चन में देखो, इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, अभी लिख लिया सबने? इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि N2 का 78% है, O2 का 21 एंड आर्गन दिस बाई वॉल्यूम। देखो यहाँ पे बाई वॉल्यूम है, सो यू टेक दैट एज अ बाई मोल, मीन्स वो परसेंटेज बाई मोल दिया, यू टेक दैट। वॉल्यूम कैसे मोल में कन्वर्ट होता है हम लोग वो आगे के चैप्टर्स में देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारा मॉलिक्यूलर वेट क्या आ जाएगा? मोल फ्रैक्शन, तो 0.78 इंटू 28 प्लस क्या आ जाएगा? 0.21 इंटू 32 प्लस 0.009 इंटू आर्गन का कितना होता है? 20 हो जाएगा ना? नहीं 40 होगा। प्लस 0.001 इंटू 44, देखो ये हो जाएगा इसका, और ये तुम्हारा आता है 28.6 के आसपास। मतलब ये यहाँ पे तो आ रहा है 28.9, हाँ, तो इसको मैं अप्रोक्स लिखते हैं 29 ग्राम पर मोल। तो एयर का मॉलिक्यूलर वेट, इसीलिए मैंने लास्ट डे भी कहा था, इट इज 29 ग्राम पर मोल। देखो लास्ट डे मैंने कहा था ये। ओके तो ये ध्यान में रखना है, ये देखो ये जो मैंने पूरा एक्सप्लेन किया, सबने लिख लिया होगा, आई होप सो। ओके एवरीबॉडी। यस सर। 25 हो गया, 30 30 अगर मैंने उसमें कोई क्वेश्चन कहा होगा तब, नहीं तो जो नहीं बोला है वो नहीं करना है। 30 35 Sir, question number 32. 32 देखो ये 32 polystyrene having formula this was prepared by heating styrene with tribromo
benzoyl peroxide in absence of air if it was found to contain 10 point, तो देखो ना यहाँ पे उन्हें क्या कहा है कि Br जो बाकी का इंफॉर्मेशन वो ऐसे ही है, वो अपने लिए काम का नहीं है। इंफॉर्मेशन कौन सा काम का है कि ब्रोमीन इज 10.46% बाई वेट, तो Br C6H3 C3H8N, ठीक है। तो यहाँ पे वेट ऑफ Br बाई टोटल वेट इंटू 100, ये तुमको दिया हुआ है कितना 10.46, देखो तो यही दिया हुआ है इंद्रानी। तो देखो यहाँ पे Br का, यहाँ पे मैं क्या लूंगा, मैं ऊपर नीचे मॉलिक्यूलर एटॉमिक वेट ऑफ Br कितना हो जाएगा 80 बाई 80 प्लस 72 प्लस 3 प्लस 36 प्लस 8 44 इंटू n इक्वल टू 0.1046। देखो ये ऐसा हो जाएगा। देखो तो इसको इसी साइड रहने दो, 100 इंटू 10.46। इंद्रानी देखो तो ये आता है समझ में? यस सर। तो यहाँ से देखो 5, तो इसको इधर उधर करो तो 10 इंटू 100 बाई 10.46 इक्वल टू ये 5 155, देखो प्लस 44n। तो अगर ये 10 होता तो ऊपर 10 आता, ये 10 से अधिक है तो ये कुछ 9.8 आ जाएगा, लेट्स से 9.5 ले लो बेटर। देखो 155 प्लस 44n इक्वल टू कितना हो जाएगा 760। देखो ये ऐसा आ जाएगा 760, तो 44n क्या हो गया 760 माइनस 155, ऑलमोस्ट 506, तो n इज 605 बाई 44, ये कितना आ जाएगा 10 टाइम्स। मॉलिक्यूलर वेट कुछ रॉन्ग लिया है क्या? Br इज, अच्छा Br3 है, सॉरी इट इज Br3, क्लियर है ये? तो दिस इंटू 3 आ जाएगा और ये 240 आ जाएगा। ये देखो ये Br3 है, मैंने सिर्फ Br ले लिया था इसलिए पूरा रॉन्ग हो जाएगा। तो 240 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 240 प्लस 75 प्लस 44n, दिस इज 10.46, तो 5134 नहीं 315 प्लस 44n इक्वल टू 240 इंटू 100 बाई 10.46, तो ये ऑलमोस्ट 9.5 ले लो, ये गया। तो 44n इज 24 इंटू 95 माइनस 315, तो n विल बी दिस बाई 44। देखो तो इंद्रानी, यस सर। समझा क्या? यस सर। ऑलमोस्ट 44.65 के आसपास आएगा। तो देखो उसमें जो बाकी है वो ऐसे ही है, मेन तुम्हारा यही है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ Br मींस एटॉमिक, इसका Br का टोटल वेट बाय टोटल मॉलिक्यूलर वेट इनटू 100 इज दिस, यही तुमको करना है। ओके 35
35 नहीं ओके 38 38 और उसमें कुछ कहा होगा तो कहा था क्या उसमें कि नहीं कुछ 38 तक सम्यक यस 38 वैष्णवी कोई था No, उसमें sir. नहीं ओके तन्वी तन्मय किया है सॉल्व सबने तन्मय होमवर्क किया है हाँ सर। ओके नेक्स्ट डे से वीडियो ऑन रखना है ठीक है एवरीबॉडी 38 तो बिकॉज मुझे पता ही नहीं होता तुम लोग क्या कर रहे हैं तो एटलीस्ट वीडियो ऑन होने पे तुम कुछ बोल रहे हो वो मुझे पता होता है कि हाँ कोई तो कुछ बोल रहा है आवाज नहीं आ रही तो तुम्हारे जो सीनियर्स का बैच है उसमें वीडियो हमेशा ऑन रहता है तो अभी तक मैं आई वाज नॉट अभी तक मैं देख नहीं रहा था लेकिन अभी देखना होगा सबने होमवर्क किया है सिया सर ओके 38 यस सर 38 कहा था क्या सॉल्व करने को यस सर नहीं No, हाँ? नहीं तो 38 तन्वी नहीं करना है अभी वो मैंने कहा नहीं अभी करने को ठीक है ओके एवरीबॉडी तो देखो अपना एक मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर का ये कंप्लीट हुआ देखो इसमें अभी सॉल्व ये था ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है क्योंकि मैंने लास्ट टाइम ही शेयर किया था 25 तक वो किया है सॉल्व सबने उसके डाउट्स मैं नेक्स्ट क्लास में लूंगा और एक शीट भी मैं शेयर करूंगा मोल कॉन्सेप्ट पे शीट फॉर सॉल्विंग तो उसको भी सॉल्व करना है ठीक है जैसे मैंने वेक्टर का शीट शेयर किया है ठीक है एवरीबॉडी यस Yes sir. ye- ठीक है और किसी कोई डाउट है तो बोलो नहीं फिर ऑफ फॉर द डे गुड नाइट नेक्स्ट डे से वीडियो ऑन रखना है तो कीप दैट इन माइंड सर थैंक यू सर गुड नाइट थैंक यू सर गुड नाइट गुड नाइट सर थैंक यू सर बाय सम्यक गुड नाइट